Hi everyone, कैसे हैं आप लोग? Welcome to the channel and in this video we are going to talk about the common admission process that is used to do the admissions for the new and baby IIMs. जब भी हम IIMs की बात करते हैं तो IIMs को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है. There are certain IIMs which are called older IIMs, those IIMs which are established on or before 1996. These are IIM Ahmedabad, Bangalore, Calcutta, Lucknow, Kozhikode, Indore and IIM Mumbai which is recently converted from NEET to IIM Mumbai. सो दीज आर ओल्डर आईएम्स. इनके लिए एक अलग सा एडमिशन प्रोसेस होता है जो हर किसी कॉलेज के लिए डिफरेंट होता है. हर की कॉलेज अपना शॉर्ट लिस्ट निकालता है, अपने खुद इंटरव्यूज़ करता है एंड अकॉर्डिंगली एडमिशन उनका हर किसी का अलग तरीके से अलग क्राइटेरिया से होता है. बट फॉर न्यू आई एम्स दैट इज़ आई एम उदयपुर, रांची और काशीपुर और बेबी आई एम्स लाइक फॉर एग्जाम्पल आई एम संबलपुर, सिरमौर एंड ऑल, उनके लिए it is not possible to have a different admission process for each of the college. So they have decided to come together and they have formed a common admission process that is called IIM CAP. तो ये अराउंड 10 कॉलेजेस के लिए होता है जिसमें आते हैं IIM काशीपुर, रायपुर, रांची, त्रिची, IIM उदयपुर, IIM बोधगया, IIM जम्मू, IIM संबलपुर, IIM सिरमौर एंड IIM नागपुर. सो ये 10 कॉलेजेस आते हैं एंड वो एक कॉमन एडमिशन प्रोसेस कंडक्ट करवाते हैं. So in this video we are just going to look at what exactly this common admission process, and we'll be looking at the selection criteria and eligibility criteria for the entire common admission process. We'll be doing this video in total 3 parts. This is the first part of the video series जिसमें हम बात करेंगे for IIM काशीपुर, रायपुर and रांची. Okay, so let's go ahead. Now let's try to understand the eligibility criteria. So for a common admission process, every college first of all have their own criteria when it comes to undergrad marks or marks in 10th and 12th or anything else. But when it comes to appearing for this CAP process, there is a eligibility criteria for your scores in CAT. So आप अगर इस process में participate कर रहे हैं तो आपके individual sections में 70 percentile होना चाहिए and आपका overall percentile 93 होना चाहिए. This is for general category. अगर आप OBC कैटेगरी में आते हो तो द रिस्पेक्टिव नंबर्स आर 50 फॉर अ सेक्शनल परसेंटाइल्स एंड 74 ओवरऑल. फॉर EWS द नंबर्स आर अगेन सेम एज OBC. फॉर SC द percentiles are like 35 and 54. For ST it is 27 and 40 and for DAP it is 27 40 similar to ST. So आपका रिस्पेक्टिव कैटेगरी आप देख सकते हैं. यू कैन हैव अ लुक एट दिस टेबल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वेदर आर यू रियली क्वालिफाइंग फॉर द CAP process or not. So that is a basic eligibility criteria. Once you clear this, you will be called for the interview. Now it is not necessary that if you clear this you will be called for interview, but at least your application will be considered for calling the interview. After that you will be called for the interview of CAP process, and then each of the college will have a separate selection criteria. So we'll now first look at the IIM Kashipur selection criteria. So IIM Kashipur gives 33% weightage to the CAT score. Now how do they calculate this marks? Simply on the basis of आपको कैट में कितने मार्क्स आए डिवाइड बाय टोटल कैट के मार्क्स इनटू 33. सो अगर आपको कैट में मार्क्स आए थे 99 और टोटल कैट के मार्क्स से 198, सो 99 बाई 198 आता है 50%. सो यू शुड गेट 50% ऑफ दिस 33 मार्क्स. दैट इज योर कैट स्कोर. आपको क्लास 10 में कितने मार्क्स आए थे उसके ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं. क्लास 12 के ऊपर आपको 5 मार्क्स मिलते हैं. सिमिलर वे ऑफ कैलकुलेशन द वे दे हैव डन फॉर कैट. आपके ग्रेजुएशन मार्क्स पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं. जैसे कि अगर आपको ग्रेजुएशन में 50% से कम है तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे. 50 से 60 के बीच में 1 मार्क मिलेगा, 60 से 70 में 2, 70 से 75 में 3, 75 टू 80 में 4 एंड 80 प्लस के लिए 5 से 5 मार्क मिलेंगे. अगर आपके पास कोई CA से ICW जैसे कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो आपको प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन के लिए भी 5 मार्क्स मिल जाएंगे. और एल्स यू विल नॉट बी गेटिंग मार्क्स हियर. वर्क एक्सपीरियंस में आपका कितना एक्सपीरियंस है इन नंबर ऑफ मंथ्स, आपको 12 तक मार्क्स मिल सकते हैं. जैसे कि इफ़ यू आर हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन बिटवीन 0 to 6 यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स और मोर देन 36 months यू विल बी गेटिंग 0 मार्क्स. ऑन द अदर साइड इफ यू हैव एक्सपीरियंस इन बिटवीन 18 to 30 months यू विल बी गेटिंग 12 मार्क्स हियर. देन देयर इज अनदर क्राइटेरिया ऑन डाइवर्सिटी. अगर आप एकेडमिक डाइवर्सिटी में आते हो, जैसे कि आपने जिसमें अंडरग्रेड किया है दैट इज इन नॉन इंजीनियरिंग सेक्टर, देन विल बी गेटिंग 4 मार्क्स. और एल्स इफ यू इंजीनियर विल बी गेटिंग 0 मार्क्स. अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे. एंड ऑब्वियसली ये टोटल होता है 75 और बाकी 25 मार्क्स आपको मिलेंगे पर्सनल इंटरव्यू के बेसिस पे. सो दिस इज हाउ दे कैलकुलेट द इंटायर 100 मार्क्स फॉर देयर सिलेक्शन. उसका एक एग्रीगेट स्कोर बनेगा
उसके बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी एंड दैट इज हाउ दे विल सेलेक्ट यू फॉर द फाइनल सीट इन IIM काशीपुर। ओके, लेट्स गो टू अनदर कॉलेज IIM रायपुर। यहाँ पे कैट स्कोर को आपको 42 मार्क्स मिलते हैं। देन आपको पर्सनल इंटरव्यू के लिए 23 मार्क्स मिलते हैं। 12th स्कोर के लिए आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। दैट इज अगेन डिपेंडेंट ऑन हाउ मेनी मार्क्स यू हैव गॉट इन 12th। लेस देन 50 you'll get no marks, but more than 90% you'll get 5 marks. For graduation you'll get 5 marks. Criteria is same as like 12th only. जेंडर डाइवर्सिटी के लिए अगर आप फीमेल या ट्रांसजेंडर हो तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। वर्क एक्सपीरियंस पे आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। जैसे कि अगर आपका एक्सपीरियंस 3 महीने से कम है या फिर 48 मंथ से ज़्यादा है तो you'll be getting 0 मार्क्स है। बट अगर आपका एक्सपीरियंस 24 to 30 मंथ्स के बीच में तो आपको 12 मार्क्स मिलेंगे। एकेडमिक डाइवर्सिटी पे आपको 2 मार्क्स तक मिल सकते हैं अगर आप नॉन इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो। देन देर आर 2 more criterias that IIM Raipur has added. One of them is like your personal profile mapping. After the evaluation of your entire profile, they try to understand whether you fit really in with the IIM Raipur's MBA program's objective and all. ये करने के बाद they take a call on whether they have to give admission to the particular candidate or not. So उसके लिए वो 2 मार्क्स रखे उन्होंने। एंड देन देयर इज वन मोर क्राइटेरिया जहाँ पे वो आपकी कंसिस्टेंसी और आपका डिग्री प्रोग्राम का ड्यूरेशन चेक करते हैं, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलते हैं। सो maximum marks you can get here is 100. In each of these criteria you will be getting a marks between the marks allotted here and 0. So that is the total selection criteria of IIM Raipur. Again total aggregate score पे मेरिट लिस्ट बनेगी और आपको सीट दी जाएगी। Now let's come to the third college in the video today is IIM Ranchi. Simplified criteria compared to the criteria for IIM Raipur and IIM Kashipur that we saw. CAT score के लिए 50% मार्क्स लोकेटेड है। पर्सनल इंटरव्यू के लिए 20% मार्क्स है। देन वर्क एक्सपीरियंस के लिए 5 मार्क्स एंड जेंडर डाइवर्सिटी के लिए 5 मार्क्स है। अगर आपको देखना है कि आपको ये मार्क्स कैसे मिलेंगे तो मैंने नीचे इसमें एक टेबल डाला है वर्क एक्सपीरियंस के ऊपर, आप ये देख सकते हो। अकेडमिक प्रोफाइल के लिए 20 मार्क्स है। इसमें आपको आपके 10th 12th एंड ग्रेजुएशन के बेसिस पे मार्क्स मिलेंगे, जो भी आप इस टेबल में देख सकते हो। आफ्टर इंटायर असेसमेंट अगेन मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी एंड अकॉर्डिंग टू दैट टॉप जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको सीट ऑफर की जाएगी। इट इज़ वेरी ऑफन इन दिस कॉलेजेस के फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो कैंडिडेट ज्वाइन करते हैं, लॉट ऑफ देम विल एंड अप ज्वाइनिंग अदर कॉलेजेस। सो इनके मल्टीपल मेरिट लिस्ट निकलते रहते हैं, लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4। देयर इज लॉट ऑफ वेटिंग लिस्ट मूवमेंट वी ऑब्जर्व इन केस ऑफ न्यू IIMs. So you can easily observe that the churn rate of a candidate is very higher compared to colleges like IIM ABC, LKI or for example FMS. So even if you feel that कि आपने कहीं पे देखा है कि फर्स्ट लिस्ट के क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, कीप योर सेल्फ होपफुल एंड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू बिकॉज देर इज लॉट ऑफ चर्न, देर इज लॉट ऑफ वेट लिस्ट मूवमेंट दैट दीज कॉलेजेस ऑब्जर्व एंड you always will have a greater chance or higher chance of getting selected here. So that's for the today's video. Thank you so much. I'll be covering the other colleges that I listed in the starting of the video in the other two parts. Keep tuned and don't forget to subscribe. Thank you so much.